The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hello, guys. Very good evening to all of you. So, just quickly let me know who is attending their first class today, or at least their first class with me. Second class, Sarthak Chauhan chalega. So, first class with me, Rushil Sethi. Okay. Kshitij Pratap Singh, Rushil Sethi, Harsh. नेटवर्क सिग्नल कम आ रहा है मतलब ये वाईफाई वाला। अरे इतना काफी है। Enough. प्रशांत शुक्ला is asking, can I drop number system chapter? अरे नहीं, क्यों भाई? मतलब you can but don't. You will understand. MDC classes इसीलिए तो होती है. How much from number system comes from the class? Very difficult question. Not difficult question. How much from number system? It could be just one question or two questions, four questions. Looking at the latest trend, uh, I don't think more than 10% of the overall examination number of questions. I mean, not more than three questions. Last year, I don't think there was even a single question from number system. I wrote the test in the first slot, and there was a question from progression series, but not from number system. If you count progression to be a part of number system, I do not. Sir does. Then you can say okay, one question or two questions. But typical number system like factorial and HCM, LCM, HCF, unit digit, divisibility, division remainder. No, no question. Last exam. Sometimes one question or so. But numbers as a topic should not be done because the questions come in the exam. It is because it is one of the building blocks of quantitative aptitude, and you learn a lot uh, about the numbers. You know, the number formation and factors and multiples, and it helps you in other topics also, like that I stress a lot about the options, working through the options. So these knowledge points help you a lot in discarding the options wherever calculation is involved. Okay. Ayush Chaudhary, GMAT point of view say it is important. GMAT point of view say it is important. However, the way CAT and the way GMAT deals with this chapter is a little different. The topic and all are all same, but
प्रियांशुल बेस सिस्टम बता देंगे यार, लेकिन प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे उसको, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट उतना है नहीं। कहने को कभी एक क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, 3-4 साल में एक बार ऐसा होता है। पिछले साल नहीं था, उसके पिछले साल एक भी क्वेश्चन नहीं था। कहने को आ सकता है बट इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रैक्टिस होती है, दिमाग लगता है। उस लहजे से हमें करना जरूर चाहिए। सो टुवर्ड्स द एंड मे बी विल डू दैट। Ayush, Mindworks has not been dealing with GMAT online, but it is starting now. Okay, so we are in talks. I used to be the GMAT head earlier because I have quite an experience in dealing with GMAT and GMAT people and admission process and all. तो कभी मैं हुआ करता था GMAT हेड माइंडवर्क्स का, लेकिन फिर GMAT प्रोग्राम को ड्रॉप कर दिया गया। And for the last 3-4 years, we have not been doing GMAT. 2017 onwards, Mindworks has not been doing GMAT. अभी नहीं, but हाँ, in near future we may think so. चलो भाई, so let us start. Why was it dropped? Those were operational issues from company point of view. Okay, nothing wrong with GMAT. कंपनी के ऑपरेशंस में और उसकी डीलिंग में वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वी डिड नॉट हैव अ सफिशिएंट टीम टू रन फॉर जीमैट, एंड कैट टीम कैन नॉट रन जीमैट। नो, ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, इसलिए। तो जीमैट की टीम बहुत अलग होती है, उसके काउंसलिंग से लेके, टीचिंग से लेके, मटेरियल मेकिंग, टेस्टिंग, सब कुछ बिल्कुल क्लास अपार्ट होता है कैट से। ओके, तो सेल्स के लोग, ऑपरेशंस के लोग, वो जो कैट में जिस तरह से काम करते हैं वैसे जीमैट में हो नहीं सकते। So I was being very strict कि ऐसे नहीं हो पाया, and there was no option of increasing the team size, so that was dropped. Anyway, we might start with GMAT at Mindworks in near future, but uncertain. बात चल रही है लेकिन चलो, anyway, about GMAT, if we do, I will take a separate knowledge sharing sessions of 1 hour each, like 2-3 times, because there is a lot that you need to know about GMAT for the people who are interested. So I'll take different sessions. अभी यहाँ पर हम काम आगे बढ़ाते हैं। Problem solving on LCM, HCF in 4 and 3 digit number. Okay, so फिलहाल right now it's an MDC session. For the people who do not know MDC, what MDC stands for, please मुझे जल्दी से लिखिए। Just write MDC question mark if you do not know what MDC, or you have not heard from me or from anybody else. Just write this MDC question mark if you do not know this. तो मैं जल्दी से आपको ब्रीफ कर दूंगा। चलो, 3-4-5-6 लोगों का आ गया। Yes, Tanya, correct. It's math development class. Okay, as simple as the name is. But you should know what we do over here. So we deal with the most basic and the elaborated concept building of the topic, right? So like LCM, HCF is a great topic to discuss MDC and the worth of MDC. So small things like uh, the LCM of 3 and 4 is their product, but that of 6 and 4 is not. ये क्यों होता है? Okay, so most of you already know the answer, but some of you don't. Okay, so in this math development class, we understand the answers to all these why, all these reasoning questions. Why this happens, why that happens, the things that you might not be explained, you are not explained that elaboratedly in general common class. You understand that
in an MDC class. So the idea is to understand the most basic things, ask most basic questions. So the people who are not in touch with maths for a very long time, have forgotten the concepts, have been always scared of maths, ये उन लोगों के बिल्डअप के लिए है क्लास स्पेशली. इट्स नॉट दैट कि अदर, इट्स नॉट फॉर अदर पीपल, इट्स फॉर बिल्डअप ऑफ all those people. So in the recent past I have done MDC on permutation and combination, one class each. So that is not coverage of the topic, but that is for initial understanding. What is permutation? Why multiplication? Why addition? Okay, what is factorial? How factorial comes into the picture? What is NPR? What is NCR? All this is discussed in those classes. That was not the coverage of the entire topic. That was only MDC. Similarly, in numbers, I'm going to do MDC on all the topics, hence try to cover all the topics. But you may not expect very high level questions coming on the way, but there could be questions that might look difficult, but they will be very conceptual. Okay, calculation oriented questions are not done. Wherever there is a trick uh, told to dodge the calculations and all, even calculation intensive questions could be a part of MDC. Okay, so I'm starting with a shortcut. सौरभ सिंह पीएनसी की एक राउंड तो हो चुकी हैं एडवांस क्लासेस बाय शर्मा सर एंड बाय ऋषि सर बोथ. And the next round we may do, even I may do advanced session और revision, किसी के भी नाम पे हो सकता है, revision के नाम पे, workshop के नाम पे, advance के नाम पे, problem solving के नाम पे, doubt session के नाम पे. तो कर लेंगे हम कुछ दिनों में. ठीक है, अभी आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है, एमडीसी अभी हुआ है पिछले हफ्ते, तो कुछ दिन आप जो है उसको देख लीजिए, क्वेश्चन क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, उसके बाद एडवांस करेंगे, थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा. ओके जी, तो आई एम स्टार्टिंग विद अ स्मॉल शॉर्टकट. ओके, फॉर many of you it could be something that you already know, and for others it could be very very important. Deepika ने क्या पूछा, what is the meaning of MDC? A math development class. Deepika, math development class, the basics of mathematics. Okay, and we believe that in CAT the name is not math, the name is quant. Okay, so quant is what? Using the school level mathematics and mixing it with reasoning and language to make a a mashup of quant question. ठीक है, तो जैसे क्वांट के क्वेश्चंस क्या होते हैं, परेशान करते हैं अलग अलग जगह से, साइकोलॉजिकली, रीजनिंग में, लैंग्वेज में. पता चला करना कुछ नहीं, दो कौड़ी का क्वेश्चन है, 2+2 करना. लाइक द अदर डे वी वर डूइंग a special session on TSD. Deepika, आप उसमें थे? Special session on TSD. The first question that we saw, it was a question of CAT 1991. It was not even a math question, जिसमें आंसर 55 minutes था. Do you remember? So those kind of things. नहीं नहीं, कैट में जी के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं. अनुषी, आप रेशियो शुरू कर सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद one shortcut of calculating HCF and LCM, starting with small numbers only. So there are three cases. When you get to find the LCM and HCF of numbers, of two numbers, then there are only three possible cases that you get. Case one, the easiest case. The numbers are like 9
and 36. Okay, 9 and 36 से मेरा मतलब basically what? One number is a factor of the other, or one number is a multiple of the other. I'm not talking about decimals and fractions over here. We are done with that. Now I'm only talking about positive integers, natural numbers. Okay, so let me write factor multiple pair. Okay, so this is the easiest case. Why? Because the smaller number becomes the HCF and the larger number becomes the LCM. You don't have to calculate anything. Okay, फिलहाल तो याद करने के लिए बोल रहा हूँ. I'll explain the reasoning later. I'll explain the reasoning immediately after that. So this is the first thing that I want to do, and then I will start with the basic of LCM and HCF. Okay, so smaller number will be the HCF and the larger number will be the LCM. Always, there is no exception. Obviously, this case also covers when both the numbers are equal. They are also factor multiple pair when the number is like 10, 10. So 10 is a multiple of 10 and 10 is a factor of 10 also. Then 10 is the HCF and 10 is the LCM. Okay. All right. Now, case 2, 4, 9. What is special here? The case of co-primes. I have explained co-primes earlier, but for the new guys, I must explain it again. Co-primes are the numbers which have nothing in common with each other. Just 4 and 9, or 9 and 16, or 13 and 15, etc. etc. The numbers which have nothing in common with each other are co-primes. ओके इस केस में क्या होता है HCF is HCF is 1 always and LCM is their product. Okay, HCF is 1 and LCM is product. And the third case, the most commonly seen case, is like 8 and 12. Okay, so somewhere in the between, neither they are factor multiple pair nor are they co-primes. Okay, so one number is not the factor of the other, neither they have nothing in common. They have something in common, but not completely the factor or the multiple thing. Okay, on. Now, this is a case that we need to discuss. So, neither of the above और समथिंग इन कॉमन ऐसा समझ लो इस केस में कैसे छोटे में काम करेंगे without actually doing no without actually doing this without actually doing this 8 12 and 2 ये ना करना पड़े और हमें सीधे HCF LCM पता चल जाए उसके लिए क्या किया जाए that we are going to do now. Okay, so about
HCF of case 3. HCF is either the difference or a factor of the difference between the numbers. यानी कि what you do, subtract the smaller number minus larger number, what do you get? 4. Then you immediately check, does 8 come in the table of 4? Yes. 12 comes in the table of 4? Yes. So 4 becomes the HCF. You subtract the two. Okay, many cases you get the HCF just by subtracting the two numbers. Okay, take the case 360 and 540. 360 and चलो 36 and 54 ले लेते हैं, एक ही बात है, और या फिर नहीं लेते 360 and 5 360 and 540. What is the difference? 180. Is 360 divisible by 180? Yes. Is 540 divisible by 180? Yes. So HCF is 180. Done. Okay. Okay. So sometimes this may not work. Only the difference. Like you take the case of 6 and 10. What is the difference? 4. But neither is divisible by 4. Then you take the factors of 4. 4 के बाद अगला factor क्या है? 2. Are they divisible by 2? Yes. So 2 becomes the HCF. Okay. So once you get a case 15 and 20, what is the difference? 5. Okay. Point number 1, that you do not need to check both of them. क्या 15 5 से divisible है, क्या 20 5 से divisible है? You don't need to check all of them. You just check one. If one is divisible, the other will be divisible. Else none is divisible. Okay, जैसे देखिए 4 वाला केस देखिए, 6 and 10 वाला केस, neither is divisible by 4. See the previous case, 12 and 8 both were divisible. 365 40 both were divisible. 15 and 20 both are divisible. All right. Yes, Swaraj, this works, and actually it works in all the three cases. Actually it works. हाँ, क्षितिज ने लिखा है बहुत अच्छा केस. What about 7 and 3? What about 7 and 3? Correct. 7 and 3. The difference is 4. Okay, so obviously it is not divisible by 4. Then you take a factor of 4. 2, it's not divisible by 2 either. Then you take the factor. Final factor obviously will be 1 and they will be divisible by 1. इसीलिए क्षितिज देखिए मैंने पहले आपको सेकंड केस बताया था. दिस केस नंबर 2, 7 and 3. अगर आपने पहले देखा होता कि 7 and 3 तो ये वाला केस होता, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती. So like Swaraj just said that this is working in all the cases. But if you get case number 1 and 2, you don't really need to do all that. है ना, ये इतना काम करने की जरूरत ही क्या है जब आपने देख लिया कि these this is one of the first two cases
then just go ahead. You don't need to find the difference and blah blah blah. करने की जरूरत नहीं है. This you should do when you get something in common. Okay, so it's either the difference or a factor of the difference. Okay, तो ये हुई बात. अच्छा, sometimes what happens, the difference is larger than one of the numbers. Okay, so let me just make the case अलग अलग आपको दिखने के लिए, ऐसे ऐसे है. Okay, and let me take a case over here maybe. So sometimes the difference is larger than one of the numbers. So what if the numbers are like 50 and 16? Now see the difference 24. Then you don't need to find the difference. अगर difference ही इतना बड़ा है, then you don't need to find the difference. Then what do? You take the factors of the smaller number. Okay, you take the factors of the smaller number. 16 definitely does not divide 50. Then a factor smaller than 16 of 16 is 8. Does 8 divide? No. Then 4. Does 4 divide? No. Then 2? Yes. So finally we settle for 2. 2 becomes the HCF between 50 and 16. Okay, so whichever is smaller, either the difference or the smaller number, whatever is smaller. ठीक है. So अगर मैं लिखूं यहाँ पर, I want to make a note of it in words over here. You may want to take a snapshot of that or may note down in your own language. I am writing on my own that the HCF between two numbers, not between, HCF of two numbers is neither greater than any of the numbers nor greater than their difference. दोनों में से किसी से बड़ा नहीं होता है. HCF of two numbers is neither greater than any of the numbers nor greater than their difference. So it will be maximum equal to either the smaller number or the difference between them, whichever is smaller. If the difference between two numbers, okay, so I am taking big examples now. So 216 and 180. Okay, what is the difference? 36. And what is the smaller number? 180. Whichever is smaller, 36 is smaller. So now HCF cannot be greater than 36. Okay, now what if the numbers are 216 and 48? Now the difference is greater than 48. Then we will look at 48 and its factors. So whichever is smaller, the HCF will be either that or a factor of that. समझ गए बात? अभी ये सब क्यों होता है, ये we will look into it in detail. बिल्कुल प्रशांत जी, 17/9 का HCF 1 होगा अगर दोनों नंबर में से एक भी प्राइम है और दूसरा नहीं है, वो प्राइम नंबर या प्राइम का कोई भी रिलेशन में, तो हमेशा HCF 1 होगा. वो प्राइम वाला केस समझिए, जब दो नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, आपस में एकदम अलग अलग, रॉ मटेरियल ही अलग है. 17 प्राइम है और 9 जो है वो 3 से बनता है. सो दे आर को प्राइम एंड दे विल हैव नथिंग इन कॉमन. देयर HCF विल बी 1. ओके, जैसे नीरज ने एक दिया है केस 50, 23 and 15. What if there are three numbers? Okay, so the dealing of three numbers also starts with 2. तो सबसे पहले तो आप देखिए, it is a case of co-prime. Now 23 is such a number which is prime and the other numbers have nothing to do with 23.
50 तो 23 का मल्टीपल है नहीं, ना ही 15 है. So HCF is going to be the second case, 1. ठीक है. Please understand, if there are more than 2 numbers, then you pick a pair, find its HCF. The HCF of the entire group will not be greater than that HCF. What will be the HCF of 0 and n, where n is a whole number? Swaraj, I don't think you will ever be asked a question or anything related to this where both the numbers are not natural numbers. Okay, इतनी बात समझ में आती है आपको? About more than 2 numbers, I will just repeat once again. लिख ही देता हूं मैं. Let me write. In case of more than 2 numbers, start with a pair whose difference is smallest, and rest assured that the HCF of the group can never be greater than the HCF of these 2 numbers. Okay, even if you have more than 2 numbers, for example, you have 35, 31. 31 तो गलत एग्जाम्पल हो गया. Let me take okay, 36, 32, 48 and 60. Okay, all the numbers are even, etc, etc. There are 4 numbers, so you pick the pair whose difference is the least. So you pick these two, the difference between them is 4. Now rest assured, the HCF of these 4 numbers, HCF of all the numbers, is going to be less than or equal to 4. When the difference is 4, is 36 divisible by 4? Yes. Is 48 divisible by 4? Yes. Is 60 divisible by 4? Then finalize 4 as your answer. 4 becomes your answer. Okay. हाँ मयंक, ये किया ना मैंने. HCF ऑफ 4 नंबर्स का एग्जांपल ले लिया. उसमें आप चूज करिए ऐसा पेयर जिसका डिफरेंस छोटा हो, या फिर अगर डिफरेंस बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं हर केस में, तो पिक द स्मॉलेस्ट नंबर देन, एंड पिक द इजीएस्ट नंबर देन, जिसके फैक्टर्स आप आसानी से देख सकें. बहुत सारी चीजें होती हैं. ओके, सो दिस वाज अबाउट HCF in the third case. Let me take care of coming back the LCM in these cases. LCM case 3. LCM of case 3. अगेन प्रशांत, मैंने अभी किसी को बोला था, किसी और ने भी पूछा था कि 0 और एक होल नंबर का एलसीएम है. तो 0 वाला केस आपको कभी परेशान नहीं करने आएगा. यू विल नेवर बी आस्क्ड क्वेश्चंस जिसमें नेचुरल नंबर्स ना हो. एक 0 होगा तो वो काम होगा ही नहीं, मतलब वो आगे आपसे पूछा ही नहीं जाएगा. ओनली द नेचुरल नंबर केसेस कंटिन्यूज, क्योंकि हम फैक्टर मल्टीपल सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं इस चैप्टर में. मयंक गर्ग जी, इफ द डिफरेंस इज अ प्राइम नंबर, तब तो आपके लिए काम बहुत आसान है. मान लो डिफरेंस 13 आ जाता है, तो आप देख लीजिए कोई भी नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं. एक भी अगर डिवाइड नहीं हुआ, अगर सारे डिवाइड होगा तब तो काम खत्म हो गया. दैट प्राइम नंबर 13 becomes the HCF of all. And if even if one number is not divisible by 13, then the next factor of the prime number is direct 1.
then the HCF will become 1. इससे आसान तो केस होएगा ही नहीं, फिर सिंपल है ना. So even cases 1 and 2 are applicable if there are more than 2. So just in case you get 3 numbers, 4 numbers, and the smallest number is the factor of all the numbers, then automatically the smallest number becomes the HCF. Or the largest number is the multiple of all the numbers, then largest number will become the LCM. Okay. LCM in this case, LCM of case 3. ठीक है, मैं इसका लैंग्वेज में लिखता हूँ नोट. Okay, read this. Recite the table of the larger number and reach a multiple. बहुत सारे लोगों को स्कूल लेवल पर ये ऑलरेडी सिखा दिया जाता है. Like we had the case of 8 and 12. 12 का टेबल मैं पढ़ूंगा. Okay, 12 का टेबल I'll read. So 12 ones are 12, 12 twos are 24. Is 24 divisible by 8? Yes, then job done. LCM is 24. Okay, LCM is 24. Okay guys, that is also possible with the smaller number, लेकिन उसका टेबल आपको ज्यादा दूर तक पढ़ना पड़ेगा. So 8 is not divisible by 10, 12, 8 to the 16, 16 is not divisible by 12, 8 3 the 24, the 24 is divisible by 12, so 24 becomes the LCM. Works both ways, but I recommend you reciting the table of the larger number. ठीक है, बड़े वाले नंबर का टेबल मन में तब तक पढ़िए जब तक छोटा वाला उसे डिवाइड ना करने लगे और आपसे मिस ना हो जाए पहला चांस. जैसे आपने 12 to the 24 मिस कर दिया, फिर आप 48 पे आ गए कि हाँ हाँ 48 जो दोनों से डिवाइड हो रहा है. 48 CM तो होगा, LCM नहीं होगा. 48 will be CM, common multiple, but not will be the least common multiple. For the least common multiple, you have to reach at the first multiple of the bigger number, which is divisible by the smaller number as well. ऐसा कुछ नहीं है सौरभ सिंह. वैसे तो टेबल्स आपको आने चाहिए, आइडियली स्पीकिंग, नोइंग द टेबल्स एटसेट्रा एटसेट्रा अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको सीक्रेट अगर रिवील करूं टेबल्स मुझे भी नहीं आते हैं. ओके, मुझसे एकदम से पूछ देगा कोई. अब तो खैर जुगाड़ करते करते याद हो गया है. देखो, जब आपको याद ना हो पाए ना, मेरी बचपन से प्रॉब्लम है, मैं याद नहीं कर सकता. कोई मुझे बोल दे कि रट डालो, बस मेरे लिए बड़ा मुश्किल है. आई नीड टू नो द लॉजिक एटसेट्रा एटसेट्रा, या फिर करते करते याद हो जाए, द सेकंड कंडीशन. ओके, तो जैसे मुझे 12 के आगे का टेबल ही नहीं याद. एक 15 का याद था, 15 इज इजी एंड 20 is easy. So 13, 14, 16, 17, 18, 19, I did not know the table of any. तभी बचपन से. तो फिर जुगाड़ से हिसाब किताब आगे बढ़ा. अब 12 का टेबल ऑलमोस्ट याद हो गया है, करते करते हो गया है. आई डिड नॉट मेमोराइज. ओके, लेकिन मेरा काम नहीं रुका उसमें. सो जैसे मुझे इंटू 8 करना होता है, जैसे 13 into 8 है. So I have told you earlier also, I never multiply by 8. 8 is 2 cube, so I double it thrice. So 13, 26, 52, 104 मेरा आंसर हो. 2-3 बार करोगे फिर याद हो जाएगा. 13 8 104. नंबर से दोस्ती करनी पड़ती है, किसी भी तरीके से करो. याददाश्त काम नहीं कर रही है तो लॉजिक से करो. ओके, इसी तरह से
17 into 8 है, अब 17 into 8 मुझे अभी तक नहीं आता। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 170 में से 34 माइनस कर लो, so it becomes 136, और डबल इट थ्राइस, so 17, 34, 68, 136। तो मैं हमेशा इस तरह से काम करता हूँ। इंटू 9 करना है तो एक बार माइनस कर दो, है ना। तो 18 into 9 करना है, चलो ये तो बहुत ही इजी केस हो गया, 81 into 2 हो गया। तो ऐसे ही कुछ ना जुगाड़ निकल आता है। 19 into 9 करना है, either you do 9 into 20 minus 1 or 19 into 10 minus 1, so 190 minus 19, 171 becomes the answer। कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ निकाल के ना काम चलता रहता है। How can you do 170 minus 34? Okay, so it's 10 times minus 2 times, है ना। 10 minus 2 8 होता है ना प्रशांत जी, 10 minus 2 होता है ना। 17 into 8 करना था, तो मैंने 17 into 10 minus 17 into 2 किया, इस तरह 170 minus 34 हुआ। क्या समझे? चलिए, so okay, now let me elaborate this case. What if you do not know the table, okay, and what if you know the HCF, etc etc, तो LCM में कैसे हेल्प करता है? So suppose you have the case like 40 and 48, okay, you have the cases like 40 and 48. now यहाँ पे you can do one of the two things. जिन लोगों के लिए ये सब कुछ बहुत नया है, एकदम नया है, आपने HCF LCM को कभी इस नजर से देखा ही नहीं है कभी बचपन से, या दिखाया नहीं गया, या फिर बहुत दिन हो गए, भूल भाल गए, सब एकदम फ्रेश हो गया है, दिमाग से एकदम वॉश आउट हो गया है, अब एकदम नया लग रहा है, आपको मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, सारे दोस्तों को जिन लोगों के साथ ऐसा अभी चल रहा है कि उनके लिए सब कुछ एकदम नया है, सब हवा में लग रहा है कि यार ये सब कैसे हो जा रहा है, समझ ही में नहीं आया, किसी ने कभी ऐसे बताया नहीं, तो आप ये वीडियो एक बार दोबारा देखिएगा, ओके, और नोट्स को तब बनाइएगा, अभी सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिए, सारी चीजें नोट करने के चक्कर में अभी मत पड़ो। वीडियो इसीलिए दिया जाता है आपको कि आप बार बार देखें, नोट्स अच्छे से बनाएं, समझें उसको दोबारा, पॉज कर करके इन चीजों को समझिए, अपनी तरफ से 2 3 4 और एग्जाम्पल लीजिए। हरकीरत जी, ये अपलोड होता है वेबसाइट पर, पोर्टल आपका बनता है ना, उसी पर होता है अपलोड। बाकी आप संजीता से पूछ सकते हैं, या फिर ग्रुप में और किसी दोस्त से पूछ सकते हैं, ओके। तो इसको दोबारा एक बार देखिएगा, अपनी तरफ से 2 3 और एग्जाम्पल्स देना, और उसी टाइम पर, हाँ, mindworks.in पर, थैंक यू प्रियांशु, mindworks.in पर अपलोड हो जाता है ये। 4 5 साल पहले क्या होता था, एक YouTube चैनल पर ही अपलोड होते थे मेरे वीडियो, मैं ही अपलोड कर दिया था, लेकिन अब वो सारे पोर्टल पर जाते हैं, वीडियोस 2020 के अंडर में मिलेंगे, ओके। सो 40 और 48 का जैसे केस है, तो यू कैन डू वन ऑफ द टू थिंग्स, वन, so obviously you do not know the table of 48, I don't expect you to, but you know the table of 40, so one thing you can do, you can start with the table of 40, अब जिसका आता है उसी का पढ़ेंगे, so 40, no, 40, 80, 80 is not divisible by 48, then 120, 120 is not divisible by 48, ऐसा आप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कभी ना कभी एक ऐसा नंबर आएगा। और what you can do, you know the difference between them is their HCF, you know already that the HCF is 8, okay, आप जानते हैं कि HCF इन दोनों का 8 बनेगा, दोनों के बीच में डिफरेंस 8 है, अभी हमने डिस्कस किया डिटेल में, that HCF cannot be greater than their difference, and their difference is 8, and you know that both the numbers are divisible by 8. So if you take 8 common, if you take HCF common out of both the numbers, then
inside the bracket, what you are left with, you are always left with case 2. You are always left with case 2, the co-prime. जब आप HCF को बाहर ले लेते हो ना ब्रैकेट में, you are always left with case 2. So what is the LCM in the case 2? The product. तो यहाँ पर देखिए कितना आसान हो जाएगा आपके लिए. LCM जो है वो 8 इंटू 5 इंटू 6 हो जाएगा सीधे, है ना. या तो भाई 48 का टेबल आता हो तो ये सब करने की नौबत नहीं आएगी, आप कर ले जाओ. अगर टेबल नहीं याद है then you can do this. Okay, what if the table is also not known, the HCF is also not known, then you can take something in common. Okay, like I took the case of अभी क्या लिया था केस यहाँ पर. हाँ, सपोज 36 एंड 32 I took common. Okay, 36 32 में भी कुछ 36 एंड 60 सपोज. तो वैसे 60 का तो टेबल आसान है, but still let me take that case. 36 and 60. Okay, then I know that 6 is common. अभी 60 का टेबल मुझे मालूम है पर बहुत दूर तक पढ़ना पड़ेगा. 36 का तो नहीं मालूम ना. So आप 60 का तो टेबल पढ़ लोगे, but how to know that the other number is divisible by 36? उसके लिए 36 का भी टेबल आना चाहिए, तो ये पंगा है इसमें. But you know that both the numbers are divisible by 6, so you can take 6 also common. आपको तीनों में से कोई ना कोई केस मिलेगा. So when you take 6 common, you get this case 6 and 10. So which case is this? This is again third case. इसमें तो कर सकते हो 10 का टेबल पढ़ के वगैरह वगैरह. तो इनका एलसीएम निकाल लो और 6 को बाहर रहने दो. इनका एलसीएम हो गया 30, तो आपका फाइनल एलसीएम हो गया 6 इंटू 30. समझ रहे हैं? बड़े नंबर से ऐसे डील किया जाता है. यू टेक समथिंग इन कॉमन, वट एवर यू नो, जो आपके कंफर्ट लेवल के अंदर हो. ठीक है, जितनी आपकी दोस्ती हो गई है नंबर्स के साथ उतना आपको मालूम रहेगा. तो आपको 36 और 60 में 12 भी दिख सकता था, 12 दिख जाता तो आप 12 कॉमन ले लेते, है ना. 12 कॉमन ले लेते तो ये कौन सा केस बन जाता? फिर ये केस 2 बन जाता ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, तो बेसिकली आवर जॉब इज टू मेक नंबर्स स्मॉलर. 7 और 9 का एलसीएम प्रशांत जी फिर देखिए वही चीज है, 7 प्राइम नंबर है ना, और 9 का 7 के साथ कोई रिलेशन नहीं, तो केस 2 हो गया, 7 इंटू 9 हो जाएगा. दो कॉमन लेते निकिता तो हाँ फिर वो स्टेप्स में होता, फिर वो वही काम हो जाता जो हम वहां करते हैं ना. अब जैसे 36 और 60 में आप 2 कॉमन लेते तो ये बनता 18 एंड 30, तो पहले से आसान हो जाता. अभी आपको फिर दिख रहा है कि इसके अंदर 2 कॉमन है, फिर 2 बाहर निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा 9 एंड 15 हो जाएगा. अभी आपको इनमें 3 कॉमन लिखा है, 3 बाहर निकाल लो. यही तो करते हैं हम, यही तो करते हैं ना हम ये वाले केस में, यही तो करते हैं हम. तो जितना बड़ा दिख जाए उतना आप बाहर निकाल लीजिए. तो अंदर वाला केस इवेंचुअली द केस इनसाइड द ब्रैकेट will become, if you keep taking out the common things outside, it will eventually become the case 3 with smaller numbers inside the bracket. एंड फिर आप उन दोनों को प्रोडक्ट ले लीजिए, वो उनका एलसीएम उधर हो जाएगा और बाकी बाकी जो बाहर वाला है वो उसको बाहर रहने दो. कि ये हुए 3 केसेस. ऑल राइट, नाउ is the time for question. नहीं, क्वेश्चन के पहले बेसिक्स में बात कर लेते हैं जरा. ओके, नाउ rewinding and going to the first thing that you should know about LCM and HCF. Okay, so I'm taking the example of 12 and 18, okay, and their multiples.
12 के मल्टीपल्स 12 का टेबल है 12, 24, 36, 48, 60, 72 and 84, 96, 120 and so on. 18, 36, 54, 72, 90, 108 and so on. Okay, so we have seen the M. We have seen the M. M for multiples. We have seen the multiples. Now, what are these? Common multiples. Okay, हमने सबसे पहले multiples देखे, फिर common multiples देखे, and then we finalize because it is the least common multiple. So this is always like this. You read it LCM, but you always understand it MCL. सबसे पहले multiple है, फिर वो common multiple है, फिर वो least common multiple है. Okay, so this way I think I was able to make out the difference between LCM and common multiples and multiples. ये सिर्फ एक रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली है. So first of all, it is a multiple of both the numbers. Therefore, LCM of the two numbers or three numbers can never be the smallest of the numbers. It will always be either the largest or the greater than the largest number of the group. Okay, either the largest number of the group or even greater than or a multiple of the largest number of the group. ठीक है, तो ये चीज याद रखिए. Because at the end of the day, it is a multiple, then common, then least. Okay. Similarly, so you also understand that the table will go on and on and on and on, and you will keep getting common multiples till infinity. So nobody will ever talk about the HCM. HCM की कभी बात नहीं होगी. Highest common multiple. Nobody will ever talk about highest common multiple because the answer to that question is certain always. It's infinity. Because table of any number is not confined to till 10 or till 20 times or till 40 times 50 times. It could go on and on and on. तो HCM की कभी बात नहीं होती, इसीलिए LCM लोएस्ट इज फिक्स्ड. लोएस्ट फिक्स्ड है कि भाई ये है जो पहला है, उसके बाद एंड द सेकंड थिंग दैट यू शुड नो इज इवन द कॉमन मल्टीपल्स मेक अ टेबल. है ना, ऐसा 36, 72, 108 दे आल्सो मेक अ टेबल. कॉमन होते हैं मल्टीपल्स दोनों के, वो भी अपना टेबल में ही मल्टीपल्स में ही अकर करते हैं. ऐसा नहीं कि एक तो 36 हो गया, दूसरा 60 हो गया, तीसरा 90 हो गया, ऐसा नहीं होता है ना. सो इट विल ऑलवेज अकर इन टेबल्स. ओके, लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स. सो लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ 12 एंड 18 अगेन. इन सब का देखो शॉर्टकट मैंने ऑलरेडी बता दिया है. So factors of 12, 1, 2, 3, 4, 6. Actually दूसरे कलर से लिखना चाहिए. 1, 2, 3, 4, 6, 12 and 1, 2, 3, 6, 9, 18. Both have 6 factors each. ये सब तो हमने देख लिया है. अब जरा कॉमन देखते हैं. Then 2,
Okay. Then 3. Okay. And then 6. Okay. So we first saw factors, then we came across common factors, and then we came across the highest of the common factors. है ना? Similarly, in this case, you will never be talked about the LCF. It's a stupid question because the answer is always 1. भाई 1 तो हमेशा हर नंबर का फैक्टर रहेगा, तो कोई लोवेस्ट कॉमन फैक्टर काहे को पूछेगा? हाईएस्ट का देयर इज अ लिमिट, फैक्टर्स की देयर इज अ लिमिट. ओके, तो फैक्टर की लिमिट क्या होती है? नंबर तक होती है. नंबर से बड़ा फैक्टर तो उसका नहीं हो सकता. दैट इज व्हाई द एचसीएफ ऑफ a group of numbers can never be greater than the smallest of the numbers. It is either a smallest of the numbers or even a factor of that smallest number. ठीक है? तो HCF के केस में इसीलिए मैंने आपको बताया था, when there is an HCF of a group to be found, then what you do always, you always look for either a pair whose difference is very small, or you find the smallest, you locate the smallest number and look at its factors. Okay, so it's first it's a factor, then it's a common factor, and then it is the highest common factor. ठीक है, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग हो गई एचसीएफ और एलसीएम की अपना. Now let us look at the concept part through prime factorization. Okay guys, so देखिए यही होता है एमडीसी क्लास में. वैसे कहने को हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले रहे हैं, बट वी आर नॉट टेकिंग एनी डेकोरेटेड एग्जांपल ऑफ एलसीएम एचसीएफ. कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं कि 3 बत्तियां हैं जो इतने इतने इंटरवल पे जलती हैं, फिर उनका एलसीएम क्वेश्चन में एलसीएम है या एचसीएफ है. ये सब नहीं, ये एमडीसी क्लास है, इसमें ये चीजें डिस्कस होती हैं. अगर मुझे ऐसा लगता है that almost everybody will find at least a couple of things new in every MDC class. मुझे ऐसा लगता है MDC क्लास में हर कोई एक दो चीजें तो कम से कम सीख ही लेगा, ऑलमोस्ट हर कोई. ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं. कभी कभी द मोस्ट वो कहते हैं ना, मॉलिक्यूलर लेवल पर जाने के लिए आपको क्वांटम फिजिक्स पढ़नी पड़ती है. क्वांटम फिजिक्स 10वीं 12वीं के बस की बात नहीं है. तो काफी रिसर्च से कई बार छोटी छोटी चीजें निकल के आती हैं बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पर, जो होती बड़ी बेसिक है, लेकिन वो ऊपर से दिखती नहीं है. ऐसे नॉर्मली हवा में वो दिखता नहीं है कि ऐसा होता है. तो इनके ऊपर काफी हम लोग करते करते रिसर्च करते करते, व्हेन वी कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस, वी कम अक्रॉस डिफरेंट नंबर्स एंड वी डिस्कवर थिंग्स, एंड देन वी मेक एन आई मेक एन एमडीसी आउट ऑफ इट. तो नंबर्स में और इस सब में काफी उसमें चीजें बताने के लिए होती हैं, है ना? तो आप इस इन क्लासेस में परेशान ना हो कि यार कैट क्वेश्चन को डिस्कस नहीं हो रहा है. कैट क्वेश्चन का नंबर तब आएगा जब आपको ये चीजें मालूम होंगी. ठीक है, तो इसके अंदर कोर कॉन्सेप्ट्स होंगे डिस्कस. खुशी खुशी ये कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्वेश्चंस की क्लास अलग होती है और तब उस क्लास में मजा आएगा आपको. चलिए, तो आई वाज सेइंग प्राइम फैक्टराइजेशन. Okay, so through prime factorization, we are going to understand LCM and FCF both at the same time. अरे साहिल, एमडीसी क्या होता है पूछ के और चले गए, जवाब का भी इंतजार ना किया. ये वैसे एमडीसी में शुरू से 3 4 बार बता चुका हूँ. MDC stands for Math Development Class, but the name is not important. What we do inside it, वो important है. अच्छा, तो let me again take
example of 18 and 12. Okay, and then I'll take add another number to it, 24. लेकिन अभी 18 और 12 को देखते हैं. Okay, so 18 and 12 both are made up of 2 and 3. ठीक है? Here it's 2 to the power 1, 3 to the power 2. Here it's 2 to the power 2 and 3 to the power 1. देखिए स्कूल लेवल पर क्या होता है, ये चीज आपको सबसे पहले सिखाई जाती है. स्कूल में ये चीज सबसे पहले सिखाई जाती है. लेकिन स्कूल में हमारी टेंडेंसी क्या होती है, नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या बन जाता है, करते 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 रटने वाला. तो हम याद कर लेते हैं हर कुछ. जैसे कि इन दिस केस मुझे याद है, अपने स्कूल का याद है, लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, कि याद ही करना पड़ा था. क्यों याद करना पड़ा था? कि एक तो उस टाइम इतनी अकल नहीं थी कि समझना होता है क्या नहीं होता है. दूसरी चीज ये है कि मैं देखता था कि भाई जो लोग ये सब याद रखते हैं ना एकदम कंठस्थ, उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं. सुना है नंबर अच्छे आने वालों की बड़ी इज्जत होती है घर में, बड़ी तारीफ करते हैं उनके मम्मी पापा जब किसी के यहाँ ले जाते हैं तो. और हमें तो जो गालियां पड़ती थी किसी के यहाँ जाते हुए, अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, आ रहा है, पता नहीं क्या करेगा. तो बड़ी चाहत थी कि कभी जो है मम्मी पापा तारीफ करें. तो वो जो तारीफ वाले बच्चे होते थे सो कॉल्ड, वो रटते थे, तो वो हमारे आइडियल हो जाते हैं स्कूल में. और इसलिए हम मैथमेटिक्स भी हिस्ट्री की तरह रटना चालू कर देते हैं, और फिर अच्छे नंबर आने लगते हैं, और हमारे जीवन का पर्याय बन जाता है रटना. तो मुझे याद है कि स्कूल लेवल पर आई वॉज मेड टू मेमोराइज दिस, that you do prime factorization of these two numbers, and then if you are to find the HCF of the numbers, then pick the smaller power. So 2 का smaller power 1 है, 3 का smaller power of the two 1 है, so the HCF will become 6. And if you are to find the LCM, so you note down all the prime factors present in all the numbers, and then pick the larger powers, and this way you get the LCM. हाँ, मुकुल मुंजाल जी, कैट के बाद तो थोड़े दिन खुश हुए थे मेरे पेरेंट्स, लेकिन उसके बाद 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात. फिर जब मैं कॉलेज में गया तो मैं फिर पुराना वाला बन गया अपना वर्जन, फिर वहां जाके पढ़ाई छोड़ दी. अरे रिजू घोष जी बड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग भी लाइफ में, सो कॉल्ड, मतलब अच्छा करना जिसे सोसाइटी कहती है ना. गाड़ी है, बीवी बच्चे हैं, अपना ठीक ठाक जॉब में है. अगर इसी को इसको अच्छा करना कहते हैं तो सोसाइटी जिसको अच्छा करना कहती है वो उस हिसाब से अच्छा कर रहा है. जैसे आपने 3 इडियट्स देखी है, उसमें जो अपना ओमी था, साइलेंसर, वो रटंत विद्या में पारंगत था, लेकिन वो भी तो लाइफ में अच्छा करता है ना, लंबोर्गिनी खरीद लेता है वगैरह वगैरह, तो वो सच्चाई दिखाई है. ओके, सो कमिंग बैक, तो एक्चुअली अगर आप भी रट लोगे तो ये चीज काम तो हमेशा करेगी, बिकॉज it is a basic standard which will work always, that you pick the smallest powers, okay, and that will make your HCF, and you pick the larger powers, and that will make your LCM.
But why does it happen? Why does it happen? uh, 24 आवर्स के बाद याद नहीं रहता? क्या याद नहीं रहता मुकुल, सॉरी प्रशांत? कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते? देखिए, अगर ऐसा प्रॉब्लम है ना कि अच्छा वो याद नहीं रहते, हाँ तो याद नहीं रहते का बेस्ट है कि जो चीज बिना याद किए काम नहीं चलेगा उसके उसको आप क्वेश्चन के थ्रू याद करो प्रशांत। बेस्ट होता है। क्वेश्चंस लगा लगा के कोई चीज नेचुरली याद हो जाए ना, उससे अच्छा और कुछ नहीं होता। वो आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। है ना? उसको आप जैसे बचपन में मुझे कई सारे लोग बोला करते थे, कई सारे अंकल्स वगैरह वगैरह, कि एक पेपर पे लिखो, रोज लिखो और उसको दीवार में चिपका दो। भैया मुझसे ये सब कभी नहीं हुआ। ये पेपर में लिख के दीवार में चिपकाओ, सो के उठते ही उसको देखो। क्यों देखे भाई मनहूस चीज? सो के उठ के हम कटरीना कैफ की फोटो देखना चाहते हैं? एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट थोड़ी देखना चाहते हैं। तो jokes apart, we want to actually you want to learn the things by doing, learning by doing, okay, not learning by learning, memorize by heart ऐसे मत करिए। क्वेश्चंस आप उसके ऊपर 8-10 कर लो ना, बेसिक लेवल के क्वेश्चन, एनसीईआरटी लेवल पर चले जाओ, मैं तो कहता हूँ। वहां पे एलसीएम एचसीएफ की एक्सरसाइज उठाओ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स, और उसको आप अभी जो मैंने टेक्निक बताई उससे करिए। देखो स्कूल में तो ये सब सिखाया नहीं जाता, लेकिन क्वेश्चन आपको स्कूल वाले बुक में मिल जाएंगे। डाउनलोड करिए एनसीईआरटी की किताब और वहां पर जाकर 8-10 कर लो क्वेश्चन, आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा सिस्टम। ठीक है? यस दीपिका जी, ये चीज जो है हमेशा काम करेगी। इट इन ऑल केसेस इट विल वर्क। शुभम प्रकाश, इन एलसीएम वी कैन टेक द नॉन कॉमन फैक्टर्स आल्सो। वी मस्ट टेक, नॉट वी कैन, वी मस्ट टेक। एलसीएम में वी मस्ट टेक ऑल द कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स आल्सो, सॉरी, ऑल द फैक्टर्स। जैसे कि एक एग्जांपल आपने अच्छा याद दिलाया, मैं ले लेता हूँ। सो अबाउट द एलसीएम ऑफ 30 एंड 12। ओके, सो 30 is made up of 2, 3 and 5 है, and 12 is made up of only 2 and 3. So when you find the LCM, you will take 2, 3 and 5. ठीक है? तो देखिए यहाँ पर भी तो 5 प्रेजेंट है ना, बस पावर उसकी 0 है, इतना ही है बस। So you will take the highest power present, highest power present. Okay, so please understand LCM is a multiple. Okay, multiple क्या होता है? When you take the uh, table of 12, 12, 24, 36, 48, 60, let us see माइक्रो लेवल पर हो क्या रहा है। So 12, is 2 square into 3. This is 2 cube into 3. This is 2 square into 3 square. This is 2 cube. Sorry, 2 to the power 4. I'm sorry. 2 to the power 4 into 3. This is 2 square into 3 into 5, etc. etc. है ना? तो आप देखो 12 was made up of 2 square into 3. Now 2 square into 3 is present in all the numbers. You see at micro level, इसको थोड़ा सा मैं, ये देखिए 2 square into 3 you will find in all the numbers. अरे राहुल पंडित जी, क्या हो गया? नंबर्स के बीच में अचानक परम्यूटेशन का क्वेश्चन। सर कैन आई लीव परम्यूटेशन? दिल में दबी हुई आह बाहर निकल आई आपके।
देखो भाई, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आई वुड से कि देख लो, अ, अगर वक्त की बहुत कमी है, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं आप, लेकिन अभी ऐसा, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू थिंक अबाउट क्विटिंग एनी चैप्टर, बिकॉज एग्जाम के 4 महीने पहले जब आप ऐसी बात करेंगे तो मैं यही समझूंगा कि बात वक्त की नहीं है। एंड अभी आजकल तो क्या है, वक्त ही वक्त है हमारे पास। ट्रैवलिंग में टाइम जा नहीं रहा है, मॉल्स वॉल्स खुले नहीं है, पिक्चर देखनी नहीं है बाहर जाकर, तो वक्त ही वक्त है। और अगर आप अभी गिव अप कर रहे हो किसी चैप्टर पे, तो मैं यही समझूंगा कि वो चैप्टर में आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी कोई भी बात है तो आप एमडीसी का वीडियो उठाकर दोबारा देखिए, थोड़ा एनसीईआरटी लेवल पर जाकर खुद से कोशिश करिए। हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मत करो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एनसीईआरटीज, इवन एनसीईआरटीज आर गुड बैड, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप जैसे एमडीसी देखने के बाद एनसीईआरटी पे लेवल पे जाकर थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं तो आप सीख जाओगे। मैं कहूंगा कि कोई भी चैप्टर को कंप्लीटली मत छोड़ो, ये सबके लिए है, आपके लिए नहीं है। ओके, तो कोई भी चैप्टर को कंप्लीटली मत छोड़िए, उसको इतना कर लीजिए कि कोई आसान क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो वो आपसे ना छूटे ना। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो देखो सब लटकते हैं उसमें, एकदम आसान वो ना छूटे आप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एलओडी वन हो रहा है ना, एलओडी वन को दोबारा करना है एक बार। एलओडी वन, एलओडी टू छोड़ दो, एलओडी वन आप दोबारा करिएगा राहुल। पहले पहला वाला अगर आपने स्ट्रगल के साथ खत्म किया है तो दोबारा करिएगा कि आप उसे इजीली खत्म कर पाए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बेहतर आएगा। अगर दोबारा वाला भी आपने किसी तरह खत्म किया तो फिर एक बार तीसरी बार भी करना, 10 15 20 दिन बाद, इस बार एज अ टेस्ट करना, ठीक है, 10 10 क्वेश्चन का टेस्ट बना के इस तरह से। बाकी देखिए, शुभम प्रकाश जी ने अभी यहाँ पर एक आपके लिए एक हेल्पफुल चीज बताई है कि पीएनसी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सर की बुक में एलओडी टू ज्यादा इजी लग रहा है एलओडी वन से। उनको लग रहा है कि सबको लग रहा है, आई डोंट नो। डिले हो सकती है मेरे भाई, वैसे तो इनसाइडर मैं भी नहीं हूँ, हाउ कैन आई से, लेकिन यदि कोई चमत्कारिक इलाज नहीं आया कोविड का तो इसका डिले होना तय है। मोदी जी कोई जादू दिखाते हैं अगर 15 अगस्त को, तो कुछ होप कर सकते हैं, वरना डिले हो जाएगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। देखो, कोई भी किताब सफिशिएंट होगी, और बाकी ओल्ड कैट क्वेश्चंस वगैरह, जेड क्वेश्चंस, इन सब के ऊपर वर्कशॉप्स एंड ऑल तो हम लोग करेंगे ही, है ना, तो डोंट डोंट वरी अबाउट इट। शाश्वत, अगर आपको ज्यादा परेशानी होती है या वक्त का प्रॉब्लम है कुछ, तो एलओडी टू तक करके आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलओडी थ्री के चक्कर में ज्यादा ना पड़ो तो भी चलेगा, आप कर ले जाओगे कैट में अच्छा। रिजू घोष इज टेलिंग मी कि आईएमआई के डायरेक्टर का स्टेटमेंट आया है कि डिले विले नहीं होगा, तो आप लोग यू ब्रेस योर सेल्व्स एंड पुल अप योर सॉक्स और करते रहिए तैयारी, यही सोच के कि अभी 4 महीने रह गए। सफिशिएंट है प्रशांत जी, सफिशिएंट है बिल्कुल, उतना ही आप कर लें, उतना भी करने की जरूरत नहीं, उसमें से भी कुछ कुछ कर लेंगे तो काम चल जाएगा। क्लॉक्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट उसमें कुछ नया नहीं है क्लॉक के केस में। मयंक लिख के दे दो, शायद एक्सप्लेन अभी मैं ना करूं, लेकिन लिख के दे दो। होते हैं गेन और लूज वाले क्वेश्चन होते हैं क्लॉक, करेंगे उसके ऊपर, अभी तो एमडीसी शुरू हुआ है,
टाइम स्पीड डिस्टेंस का, उसमें आगे क्लॉक करूंगा, मैं ही करवाऊंगा। ओके गाइस, तो प्लीज अंडरस्टैंड 12 के मैंने मल्टीपल्स लिए सारे, उनके सबके आपने फैक्टराइजेशन जब किया तो यू गॉट टू नो दैट एवरी नंबर हैड 2 स्क्वायर इनटू 3 फॉर श्योर। उसके अलावा कुछ कुछ और था, जैसे इन द सेकंड वन यू हैड अनदर 2, ओके, इन द थर्ड वन यू हैड अनदर 3, in the fourth one you had another 2 square. Why? Because this was into 2, this was into 3, this was into 4, this was into 5। ये 5 है तो देखिए 5 का इंट्रोडक्शन हुआ, into 4 हुआ, तो ये सब इसी में तो जुड़ेगा आके, प्राइम फैक्टर्स में ही तो जुड़ेगा आके उसका पावर जो है। So this is how the multiples are formed. So when you want common multiple, a multiple which is present in the table of 12 also and of 18 also, then you want basically the raw material of both। दोनों के रॉ मटेरियल आपको चाहिए, ठीक है, आपको दोनों के रॉ मटेरियल चाहिए। तो वैसे तो क्या है कि आई कुड हैव रिटन कि भाई 2 to the power 100 and 3 to the power 100, दिस विल श्योरली हैव द रॉ मटेरियल ऑफ बोथ द थिंग्स। 18 का भी सारा रॉ मटेरियल इसके अंदर है, 12 का भी है। इवन इफ आई हैड टेकन 2 cube and 3 cube, I would have had all the raw materials of 18 and 12 both in my number। मुझे मुझे अभी किसी ने लिख के दिया, थैंक यू फॉर दैट एक्चुअली, लेकिन ये नया नहीं है, मेरे साथ होता रहता है। किसी ने लिख के दिया कि सर आप इन लोगों को एडवाइस मत दीजिए, ये लोग अरुण शर्मा सर से शिकायत कर देते हैं। मयंक सर ने कहा है कि आपकी किताब पूरी मत लगाओ। भाई ये मेरे साथ 5 साल से हो रहा है। लोग मुझसे आके रोनी सूरत बना के पूछते हैं, सर मैं बहुत दुखी हूँ सर, मेरे से हो नहीं रहा सर। तो वो ऐसा बोलते हैं तो मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई, तुम पूरा काम मत करो, तुम एलओडी 1 ही कर लो, तुम एलओडी 2 ही कर लो। अब जब नहीं कर पा रहे हो तो क्या करेंगे? मैं उनको बताता हूँ फैक्चुअल कि भाई तुम एलओडी 2 भी कर लोगे, तुम्हारा काम बन जाए। तो फिर वहां पर जाकर वो बोलते हैं कि सर मैं सर तो कह रहा हूँ क्या, पूरी करने की जरूरत नहीं है। तो इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन, यू नो हाउ आई टोल्ड देम एंड हाउ दे टेल सर, वो बहुत अलग हो जाता है। सर भी कभी कभी मुझसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, अब ये तो पार्ट ऑफ द गेम बन चुका है। इसका कुछ कर नहीं सकते। आई थिंक सर ऑल्सो नोज दैट आई डोंट मीन एनीथिंग इन अ डेरोगेटरी वे, एंड सर ऑल्सो नोज, एक बार मैं उनको पहले ही बता चुका हूँ, सर मैंने ऐसा ऐसा कहा था, 5 4 5 साल हो गए इस बात को, और आई डेंट मीन टू deteriorate the reputation of anything, I just meant to help that kid। तो वो ठीक है, मतलब ये प्रेजेंटेशन वाली बात भी कई बार इनोसेंस में लोग कर जाते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स मैटर, द चॉइस ऑफ वर्ड्स वो कितना मैटर करता है। जब आप मैनेजमेंट में एक्चुअली जाएंगे, ये जो है ना, देखो मैनेजमेंट का जो जॉब होता है ना, जो हाई पेइंग जॉब्स वगैरह वगैरह, ये सब आपको जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आप कैट लिखते हैं, आईएम में जाना चाहते हैं, आपको जाके पता चलेगा कि किताब में लिखा हुआ कुछ काम नहीं आता है। योर चॉइस ऑफ वर्ड, द लैंग्वेज यू यूज, द वे यू, हाँ तो देखो वही है ना, किसी ने बोला था कि मयंक सर एलओडी 3 करने के लिए मना कर रहे हैं। तो वही है कि मना करना और ये कहना कि नहीं करोगे तो भी काम चलेगा, दीज आर वेरी डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो मैं कहता हूँ नहीं करोगे तो काम चल जाएगा, मना मैं क्यों करूंगा भाई, तुम जाओ एचसी वर्मा लगाओ, एरोडोव लगाओ, पीएचडी करो मैथ्स में, मेरे को क्या दिक्कत है भाई, करिए जाके। तो उसमें कोई भी वो नहीं है। आई थिंक सर अंडरस्टैंड्स दैट आई मीन वेल फॉर एवरीबॉडी, फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर माइंड वर्क्स। तो कोई भी इसमें वैसा नहीं है। कई बार स्टूडेंट भी ऐसा होता है, दे डोंट अंडरस्टैंड द रिपरकशन, और वो एक्चुअली बस श्योर होना चाहते हैं। वो जाके सर से भी पूछते हैं कि सर मयंक सर तो बोल रहे हैं एलओडी 3 नहीं करना, आप क्या बोलते हैं? बट दे डोंट अंडरस्टैंड द रिपरकशन। वो बस श्योर होना चाहते हैं, और कई बार लोग सुनना चाहते हैं कि नहीं एलओडी 3 इंपॉर्टेंट है, जबकि वो जानते हैं कि उनके औकात के बाहर है, वो कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो सुनना बस चाहते हैं। बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु इन अ रिवर्स साइकोलॉजिकली वे दे वांट टू स्टे डिप्रेस्ड। कोई उनको इनकरेज करने की कोशिश करता है ना, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। ये बहुत रिवर्स साइकोलॉजी की बात है, आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसे लोग होते हैं। दे फील लाइक
कि नहीं, एक्चुअली सर सही कहते हैं, मैंने किताब के उनके LOD 3 नहीं लगाए। मैं जब लोग डाउट पूछते हैं वही लगाता हूँ। कितनी किताब लगाऊंगा यार, मतलब लिमिट होती है ना। तो क्वेश्चन वश्चन उस टाइम पे, अपने टाइम पे मैंने कोई किताब लगा ली थी, अब उसके हिसाब से फिर आगे काम बनता चला गया। मैं कोई भी किताब रेफर नहीं करता हूँ कभी भी। कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो क्वेश्चन होगा। सर सही कहते हैं, मैंने नहीं लगाई है उनकी किताब की LOD 3। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक लाइव एग्जाम्पल हूँ मैं आपके सामने। मैंने LOD 3 नहीं लगाई थी और मेरे आ जाते हैं 99.9%। आप में से भी कोई अगर किसी के पास वक्त नहीं है, आप LOD 1 और 2 अच्छे से लगा लोगे। देखो, LOD 3 एज अ डिफरेंट एक्सरसाइज लगाना या LOD 2 को 2-3 बार लगा लेना, ठीक है। मतलब कोई अगर किसी को लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है मुझसे, टाइम नहीं है मेरे पास, तो आप उससे कम लेवल पर भी अच्छे से खेल जाओगे तो काम बन जाएगा। कहने का मतलब बस। एनीवे, चलो। तो आई वाज सेइंग कि वैसे तो 2 to the power 100, 3 to the power 100 भी ले लेता मैं, तो काम चल जाता मेरा। बिकॉज this is not least common factor, this is a CM, common multiple, सॉरी फैक्टर बोल रहा था। This is a common multiple but not least. To find the least, I need to pick the smallest possible number which is just sufficiently having all the raw materials of 12 as well as of 18. Okay, 12 as well as 18। तो 12 और 18 के जो फॉर्मेशन में सारी चीजें हैं, वो सब मेरे पास बस होना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। LCM का मतलब होता है लीस्ट, मींस यू शुड नॉट हैव एनीथिंग एक्स्ट्रा इन दैट। ओके, तो इसलिए वी पिक दीज काइंड ऑफ थिंग्स। 4 months time is enough for CAT preparation? Again, this is an objective question whose answer is actually very subjective. Depends यार, from person to person। बंदे की साइकोलॉजी कैसी है, उसका बेसिक्स कितना स्ट्रांग है, उसका कंसंट्रेशन स्पैन कितना अच्छा है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। मैंने 3 ही महीने में कर ली थी कैट की प्रिपरेशन, सो कॉल्ड जैसी तैसी भी हुई थी। उसी में काम अपना निकल गया आगे। कुछ लोग साल साल 1.5 1.5 साल करते हैं, वो भी कम पड़ जाता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं यार। आप इसके ऊपर जो है एक अलग सेशन की जरूरत है। आई थिंक आई विल बी मेकिंग यूट्यूब वीडियोस टू एड्रेस दीज डाउट्स ओनली, कि कितना टाइम इंपॉर्टेंट है, दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, LOD 3 लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके ऊपर ही मुझे वीडियोस बनाने चाहिए। बिल्कुल यार, ये समझ लो कि किसी IIM से नहीं किया है तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है कहीं से भी किया। यस, आई विल टेक MDC ऑन रिमाइंडर्स। यस, आफ्टर दिस LCM HCF के बाद MDC ऑन रिमाइंडर्स की ही बात होनी है। ओके, सो अभी 10-15 मिनट थोड़ा इधर उधर में टाइम निकल गया। एक दो चीजें मुझे और करवानी है, उसके बाद ये क्लास खत्म करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, you should understand one thing, that let us take an example। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले we took an example of 40 and 8, sorry 40 and 48, sorry 40 and 48। Okay, we found the HCF to be 8 and LCM we found like this: we took 8 common and we got 5 and 6 in the bracket and we got 240 as the LCM। So you should know that HCF into LCM is product of two numbers। Okay, but please understand that this is valid only for two numbers, only for two numbers। मतलब if you are given three numbers and you find HCF and LCM in that case,
it will not work. It will not be the product of three numbers. Okay. So HCF into LCM, in case of two numbers, it will always work. HCF into LCM is product of two numbers. तुरंत मुझसे क्वेश्चन आता है कि तीन और चार नंबर होंगे तो हम क्या करेंगे. सो यू पिक पेयर्स एंड देन यू डू इट लाइक दिस. तो जैसे अभी हमारे पास नंबर्स हैं, जैसे अभी लिया था 32, 36 एंड देन 48 एंड देन 60. so you pick pairs, you pick this pair, you find the LCM HCF of this. तो इसका LCM आएगा 4 into 8 into 9. So 72, 144, 288. Now you have three numbers, 288, 48 and 60. Then you pick 288 and 48. Find the LCM HCF like that. Then you pick that LCM and 60. इस तरह से आप कर सकते हैं तो ये चीज काम करेगी. But it will always work only for two numbers. HCF into LCM is product of two numbers. Let us see how. तो जैसे हमने अभी ये किया था 40 and 48. So 40 into 48. Okay, you had, sorry, ये चीज इधर आएगी. 40 into 48. So HCF is 8 and LCM के लिए you did 8 into 5 into 6. Okay. So you see 8 into 5 you have and then 8 into 6 you have. So eventually you have the numbers only. तो वही बात हो जाती है. इस तरह से वो rearrange हो जाते हैं और this is always true. Okay. Now is the time for two questions. नंबर ऑफ फैक्टर्स का क्लास यार हो चुका है शुभम, आप होंगे. अरे तो ये और क्या चल रहा है. नंबर सिस्टम की तो एमडीसी क्लासेस हो रही हैं. नंबर सिस्टम इज सच अ ह्यूज टॉपिक प्रशांत शुक्ला जी कि ये एक क्लास में हो नहीं सकता. इसको मैं अलग अलग छोटे छोटे चैप्टर का नाम बनाकर इसके ऊपर एमडीसी क्लास करता हूँ. अभी क्या है, नंबर्स वन, नंबर्स टू, नंबर्स थ्री करके क्लासेस करूंगा ना, तो कई सारे लोग जो पहली बार क्लास में आते हैं ना, फिर वो लोग हल्ला मचाते हैं कि ये नंबर्स थ्री की क्लास है, इसमें मेरे को क्या समझ में आएगा. तो साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सो दैट इज व्हाई आई नेम देम डिफरेंटली. तो अभी कोई नंबर थ्री की क्लास में पहली बार आया, अब जैसे आज जो लोग पहली बार आए हैं होपफुली उनको सब समझ में आया होगा. लेकिन यही अगर मैं नंबर्स फोर कर लिख देता ना इसको, तो उनको समझ में कम आता. उनमें से कुछ लोगों को समझ में कम आता, जस्ट बिकॉज द साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये सब हम लोगों की फाइंडिंग्स हैं, रिसर्च है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स. दैट वो देख लेते हैं नंबर्स के आगे थ्री लिखा हुआ तो उनको लगता है पहले से तो ये तो कंटिन्यूएशन का टॉपिक है, हमें तो धोखा हो रहा है हमारे साथ. इस तरह की चीजें उनको लगने लगती हैं. इसलिए मैं इनके नाम ऐसे रख रहा हूँ, कभी फैक्टर्स मल्टीपल्स, कभी एलसीएम एचसीएफ, कभी नंबर ऑफ फैक्टर्स. लेकिन ये सब नंबर्स ही चल रहा है, नंबर सिस्टम ही चल रहा है. आप उसके बारे में बिल्कुल परेशान ना हो कि मैंने नाम कुछ और रखा है. क्या काम वही है. ओके. तो अभी दो क्वेश्चंस का टाइम है, चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं. आई टाइप द क्वेश्चन फॉर यू, ट्राई इट एंड लेट मी नो. इस क्वेश्चन को आप गलत करें या सही करें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा. समझे? पास है. तो HCF of two numbers is 12. How many such pairs of numbers are possible if the sum of the two numbers is 120? बताइए. Open ended question, no options, nothing.
नहीं नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ऑब्वियसली आपको मालूम है कि अभी आई हैव मेड द मॉड्यूल सच दैट कि पिछली क्लास से कोई रिलेशन ना दिखे एज फार एज एटलीस्ट एमडीसी इज कंसर्न। और वो क्लासेस हम ऑफर ही नहीं करेंगे ना अभी उनको, नए लोगों को, जिसमें पिछले क्लास का कुछ होगा या कुछ। अब जैसे टीएसडी है, टीएसडी में आई विल यूज रेशियो, सो आई विल इंश्योर दैट उतना पार्ट रेशियो का रिवाइज कर दूं पहले कि नया बंदा जो है उसको 100% समझ में आए। तो उतना आई टेक केयर ऑन दिस। So I have started getting the answers as 3 pairs, 2 pairs. I'm waiting for an answer as 5 pairs. Yes, देखिए 5 आया। चलो भाई, enough time. नहीं नहीं नहीं, unless mentioned Anushka, it's never about ordered pairs. Unless mentioned, it is never about ordered pairs. So you do not write 12 108 differently from 108 and 12. Pairs means like 2 and 3 is one pair. It's not about 2 and 3 and 3 and 2 becoming different. Okay, so let me start from the basics. So I have told you that whenever you read HCF, you first talk about, we first think that it's a factor first, then common factor, and then highest common factor. इसी कॉन्सेप्ट पर हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में. So 12 is a factor of both the numbers. 12 is a factor of both the numbers. So let the numbers be 12x and 12y. Clearly 12 is visible as a factor in each number. So 12x and 12y, numbers हो गए. Now their sum is 120, for which you get to know that x plus y is equal to 10. Okay. Now x plus y can be 10 in how many ways? It could be 1 plus 9, it could be 2 plus 8, 3 plus 7, 4 plus 6, and 5 plus 5. Interchangeably also. It's not that I am not stuck on x being 2 and y being 8. मतलब कहने का कि एक पेयर है 2 and 8. ठीक है? I hope explanation till this point is understandable. You understand what x and y are. You understand why 1 plus 9, 2 plus 8, etc. etc. इस तरह का कोई भी क्वेरी है तो प्लीज अभी लिख दीजिए मुझे. So both the numbers are multiples of 12 because 12 is a factor of both the numbers. So मैंने एक को 12 times x ले लिया, एक को 12 times y ले लिया. Okay. So for many people
till this point, the answer becomes 5 pairs, because now they know that if I put x as 1, 9, 2, 8, 3, 7, etc., etc., they'll keep getting the numbers like 1 and 9 rakhenge, 12 and 108, their sum is 120. They put 2 and 8, then you get 24 and 96, and then this way. So this is how people get 5 pairs as their answer, but that answer is wrong. ओके, नहीं तिथि मैंने पहली बात किया था कि जब एचसीएफ एलसीएम की बात होती है तो हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं और जीरो को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो 0-10 पेयर को हम कभी कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, सो कमिंग बैक, दैट 5 इज नॉट द आंसर। व्हाई? बिकॉज I cannot approve this pair or this pair or this pair. Okay, why? I have to go back. Remember this case. मैंने यहाँ पर बोला था और इसीलिए आपको ये वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा। इस पॉइंट पर जब हम ये कर रहे थे, I had told you that once you take LCM out, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, sorry, when once you take HCF out of the numbers, जब आप HCF को कॉमन ले लेते हैं, HCF 8 था ना यहाँ पे, देखो यहाँ पर HCF 12 है, जब आप HCF कॉमन ले लेते हैं, then inside the bracket you always get co-primes। मैंने बताया था it is always case 2, ये वाला केस 2 बनता है हमेशा, ये देखिए। ओके, सो वंस यू टेक HCF, वैसे भी सोचो यार, अगर आपका HCF कॉमन लेने के बाद अंदर और कुछ कॉमन बच गया है तो वो किस बात का HCF है फिर? हाउ वाज इट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर if after taking it out you still have something common between the numbers? Can not be HCF ना। जब आपने 12 बाहर ले लिया है, जब खुद ही सोचो भाई, मैं सिंपली बताता हूँ। let me just put 5 and 5 in place of x and y. What do you get the number? 60 and 60. What case is it? It is the first case. So what will be the HCF? 60. What will be the LCM? 60. चलो LCM की तो यहाँ बात नहीं करनी थी, HCF की बात करनी थी। So HCF is 60. It is not 12. In the question it was mentioned that the HCF should be 12. ये जो भी cases मैंने काटे हैं इसलिए काटे हैं because the sum of the numbers is getting 120 or 10 in this case, but their HCF is not remaining as 12, ठीक है। तो जैसे आप 4 और 6 डालेंगे तो you will get the numbers as 96 and sorry 48 and 72. Now their HCF is 24, HCF is not 12, तो आपको ये भी मेंटेन करना था। प्लीज अंडरस्टैंड ऐसा कैसे हो गया। आप कहोगे कि सर हमने तो शुरू से प्रिकॉशन लिया था, फिर ऐसा कैसे हो गया? तो इसका ऐसा इसलिए हुआ दैट यू टुक 12 टू बी अ कॉमन फैक्टर। ओके, 12 टू बी अ कॉमन फैक्टर, आपने 12 टाइम्स x लिया, 12 टाइम्स y लिया। अब ये कैसे इंश्योर करोगे कि x और y आर को प्राइम्स आफ्टर दैट? तो आपको मैन्युअली उसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, x और y की वैल्यूज को विच आर नॉट को प्राइम। सो HCF तभी होगा जब कॉमन लेने के बाद द रिमेनिंग पीसेस x एंड y को प्राइम नहीं होंगे, सॉरी को प्राइम होंगे। ओके, तो कॉमन लेने के बाद HCF को बाहर निकाल लेने के बाद नंबर शुड बी को प्राइम, उसमें कुछ कॉमन नहीं रहना चाहिए। देखो 2 and 8 में they were both even, so 2 was common। 4 and 6 they were both even, 2 was common। 5 and 5 तो 5 ही कॉमन है इसमें, तो कुछ कॉमन और नहीं रहना चाहिए। x और y में कुछ भी कॉमन नहीं बचना चाहिए। Okay, hence there are only two pairs possible, 19, that means 12 and 108 owing to this pair, and 36 and 84 owing to this pair. These are the only two pairs whose sum is 120 in each case and the HCF is 12 only. Ordered pair में आंसर 4 होता, करेक्ट। ऑर्डर्ड पेयर में आंसर 4 होता, ठीक है जी, ये बात समझ गए। चलो एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं।
चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. नो नो नो, इट्स नॉट अ 2 hour क्लास. लेकिन बीच में थोड़ा प्रवचन ज्यादा हो गए थे, इसलिए इतना आई हैड टू डू. नहीं रिजू, उस चक्कर में मत पढ़ो. एएम जीएम के चक्कर में पढ़ेंगे आप तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जीएम हैज टू हैव द प्रोडक्ट. उसका एलसीएम से कोई लेना देना नहीं होता है ना. तो जीएम में प्रोडक्ट होता है वो एक्स इंटू वाई. अब वो एक्स इंटू वाई कॉमन मल्टीपल है या लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये आपको मैनुअली देखना पड़ेगा. उस सब चक्कर में मत पड़िए. हाउ मेनी पेयर्स? 3 pairs, 4 pairs, 2 pairs, 1 pair? हाउ मेनी? और नो पेयर पॉसिबल? क्या पता, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल ही ना हो. So I'm going to start like that only. Let the numbers be 12x and 12y. But this time we don't have to add them. The LCM would be 12xy. ठीक है, ये एक चीज सिखाना चाहता था मैं इस क्वेश्चन के थ्रू. ये बात पहले एक्सप्लेन हो चुकी है. वापस जाऊंगा मैं वहीं पर. देखिए ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन हो चुकी है कि व्हेन यू टेक, जब आप HCF कॉमन ले लेते हो, so whatever is left inside you just take the product, because अब तो अंदर वालों का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होगा. तो HCF into x into y is the LCM always. ओके देखिए यहाँ पर भी यही हुआ, 5 into 6 then into 8. So on the same lines, when 12 was the HCF, you are sure about this, then the remaining pieces x and y, 12 into x into y. Yeah. ओके चलिए, आपके रिमार्क्स में पढ़ रहा था. सो 12xy, ये वाली बात समझ में आ गई, किसी को इसमें दिक्कत नहीं है. नाउ वी नो दैट 12xy, द वैल्यू ऑफ दैट इज ऑलरेडी गिवन 144, so x into y becomes 12. Now it could be 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4. But out of these, we cannot accept 2 into 6 as a pair, because same reason. X and Y के अंदर कुछ common नहीं होना चाहिए. And 2 and 6 are both even. There are only two common. I mean, sorry, common कह रहा हूँ. Only two pairs possible. So those are 12, 144 and 36 and 48.
Okay, हाँ तो इसके ऊपर एक्चुअली एक होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि हाउ मेनी वेज कैन यू एक्सप्रेस अ नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू फैक्टर्स। इसके ऊपर थोड़ा सा बात करना रह गया, एमडीसी का पार्ट नहीं था वो, इसलिए मैंने उसमें नहीं करवाया, लेकिन रिवाइज करवा दूंगा मैं ये। ठीक है, वैसे आप ये क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो यू कुड हैव डन like LCM 144, HCF 12 and 12x 12y, तो ये दोनों 12 कट जाएंगे 144 से, तो आपको यहाँ से भी वही मिल जाएगा x इंटू वाई। देखिए वही बात है, x इंटू वाई इक्वल टू 12, you get it like this or like this, and then you figure out the pairs, and then you manually filter out the pairs. Okay, Shubham Prakash, how many factors of 360 are odd multiples of 5? चलो अभी लास्ट एक क्वेश्चन पूछा है मुझसे, तो मैं इसका एक हिंट दे देता हूँ। 5, सॉरी सॉरी, 360, 360 is 2 cube, 3 square, 5. So what raw materials do we have? We have 2 0 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3. Then we have 3 to the power 0, 1, 2, and we have 5 to the power 0 and 5 to the power 1. Okay, so we want odd multiples of 5, odd. So we cannot take these three. तो इस ब्रैकेट में से we can choose only one. In this bracket we have no harm, we can choose all, and in this bracket we can only choose one of these, क्योंकि 5 का मल्टीपल चाहिए तो यहाँ से 1 तो चूज कर नहीं लेंगे, यहाँ से 5 चूज करना पड़ेगा। सो 1 into 3 into 1, there are only 3 odd multiples of 5। इस तरह से होगा। लो आंसर ही आ गया। अब तो इसमें हिंट क्या दूं मैं, मतलब सीधे बताना ही पड़ेगा। इस तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे। इस पे हाँ मुझे याद आ रहा है, इसके मैंने काफी क्वेश्चंस दिए थे और इसको सॉल्व नहीं किया। चलिए नेक्स्ट टाइम पे याद दिलाइएगा। आई विल डिस्कस द आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस एंड देन we'll move ahead. So this was about the MDC on FCF LCM. We don't talk about exactly the CAT questions that have appeared on HCF LCM. No hi-fi questions. HCF LCM is something which is used commonly in a lot of situations. उसके ऊपर हम डीलिंग बाद में करेंगे। एलसीएम का स्पेशली बहुत यूसेज है, टाइम एंड वर्क में, प्रॉफिट लॉस में, कई सारी जगह पे एलसीएम का बहुत इंपॉर्टेंट यूसेज है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट यूसेज एलसीएम का। तो इन जनरल, सो दीज थिंग्स आई होप सम ऑफ इट विल वर्क फॉर यू इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, बहुत काम आती हैं एमडीसी के अंदर की चीजें। एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन आए या ना आए कैट में, लेकिन ये चीजें बहुत आपके काम आएंगी पूरी प्रिपरेशन में। चलो भाई दोस्तों, अभी खत्म किया जाए। रैंकिंग एंड टीम फॉर्मेशन सिलेक्शन ही होता है, टीम फॉर्मेशन सिलेक्शन होता है। रैंकिंग कुड बी लाइक लीनियर अरेंजमेंट, रैंकिंग किसी भी नाम से हो सकता है, लीनियर सीक्वेंसिंग किसी भी नाम से, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब। मयंक गर्ग, अगर आपने इनमें से में से वन नहीं, ओनली दिस वन, आई एम नॉट सेइंग, मयंक प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग 5 to the power 0, 5 to the power 1 में से ओनली वन, आई एम सेइंग ओनली दिस वन। यू डोंट हैव अ चॉइस हियर। Okay, if you had a choice, I would have taken both. जैसे यहाँ पे I have a choice. I could pick one or three or nine. So I am taking all. I do not have a choice here. देखो भाई, 1 और 5 में से अगर आपने 1 को चूज किया, तो 5 कहीं और किसी और ब्रैकेट में तो मिलेगा नहीं, और आपको मल्टीपल्स ऑफ 5 चाहिए थे, तो फिर कहाँ से मिलेगा मल्टीपल ऑफ 5? अगर आप यहाँ से 5 ही चूज नहीं करोगे, तो फिर मल्टीपल ऑफ 5 कैसे बनेगा वो? इसलिए आप यहाँ पर, आपको 1 छोड़ना पड़ेगा, आपको 5 चूज करना पड़ेगा, इसलिए है ऐसा। ओके गाइस, चलो, thank you so very much for attending patiently, learning something.
क्यों नहीं होते भाई? किसी भी ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया है, बस आप पास हुए हैं, ठीक ठाक नंबर लाए हैं, तो आप किसी में भी एमबीए कर सकते हो, किसी भी चीज में। ओके, ऑपरेशंस में, एचआर में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, आईटी में, रिटेल में, किसी भी चीज में, फॉरेन ट्रेड में, किसी भी चीज में कर सकते हैं एमबीए आप, कोई दिक्कत नहीं है। कोई खास चेंज नहीं करेगा। ये सब तो देखो, क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल था कैट के क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए। और ऐसा नहीं है, ये चीजें जैसे कभी कभी एमडीसी में भी मैंने कैट लेवल या उससे भी ऊपर के लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं, इफ दे वर वेरी रिलेवेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसा नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम्स जब आते हैं ना, देखिए मैंने इस क्लास का वर्ड प्रॉब्लम्स इस क्लास का पार्ट नहीं बनाया, क्योंकि वो एमडीसी के ऊपर का लेवल हो जाता है। तो उसको हम एडवांस क्लास में या प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कस करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छी अच्छी होती हैं एचसीएफ एलसीएम के ऊपर। ज्योमेट्री में भी यूज हो जाता है कभी कभी, मेंसुरेशन में एचसीएफ एलसीएम का, तो वो भी क्वेश्चंस में लूंगा। Yes, for even factors, you will just select the opposite numbers, but only in the bracket of two. बाकी सब में वही रहेगा जैसा था। शुभम प्रकाश, किस तरह का क्वेश्चन आंसर सेशन की बात कर रहे हैं? अनुष्का, क्लॉक की क्लास का वक्त आएगा, लेकिन उसके पहले आई विल हैव टू कंप्लीट ऑल द एमडीसीज ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस। देयर विल बी रफली 3 to 4 एमडीसीज रिक्वायर्ड फॉर टाइम स्पीड डिस्टेंस। हाँ, प्रेप रिलेटेड क्वेश्चंस ना। प्रेप रिलेटेड क्वेश्चंस का ऐसा है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ सब लोगों को, और फॉर्मली सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपके प्रेप रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चंस हैं, आप लिखकर संजीता को मेल कर दो या मैसेज कर दो, या ग्रुप पर डिस्कस कर लो वो क्वेश्चंस, और उनकी एक लिस्ट बनाकर आप दे दीजिए। आई विल मेक यूट्यूब वीडियोज ऑन दोज क्वेश्चंस। अब YouTube वीडियो में भी मैं जाके पढ़ाऊं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ये तो सब अब क्लासेस हो ही रही हैं रिकॉर्ड, वो सब आपको मिल ही रहा है YouTube वीडियोस पे। मैं क्या वहां पे जाके पढ़ाऊं कि भाई देखो वैदिक मैथ्स ये होती है, ऐसा होता है? तो आई थिंक आई शुड डू सम पेप टॉक ओवर देयर। तो आप लोगों के क्वेश्चंस के, आप यहाँ पर भी पूरे जी भर के आंसर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वो प्रेशर रहता है कि 1.5 घंटे का क्लास है, खत्म करना है। उसमें भी ओवर टाइम हो जाता है, उसमें भी आंसर्स भी ठीक से नहीं कर पाता हूँ क्वेश्चंस के। और ये भी, इसमें भी बीच बीच में इंटरमिशंस हो जाते हैं टॉपिक्स के बीच में। अब जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, तो उस टाइम एड्रेस करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो भूल जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। इसलिए तो आप ये क्वेश्चंस, जो भी क्वेरीज हैं आपकी, जैसी भी, एमबीए रिलेटेड और कैट रिलेटेड, प्रिपरेशन रिलेटेड, मॉक टेस्ट रिलेटेड, कुछ भी, वो सब आप लिख कर दे दीजिए। और उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। मेरे ऊपर भी मुझे काफी सजेशंस आ रहे हैं कि यूट्यूब पे आपके वीडियोस भी होने चाहिए। तो संगीता टोल्ड मी कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, बट आई नीड टू नो द क्वेश्चन। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीक से आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। 4-5 वीडियोस मैं बना के दूंगा, 15-15, 20-20 मिनट के। आई विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स देयर। ठीक है गाइज, चलो आप लोग मुझे भी लिख कर दे सकते हो क्वेश्चंस जिन लोगों को मालूम है। टेलीग्राम पे तो देखो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, आप मेरा पूरा नाम टाइप करो, मयंक राज सिंह, और आपको मिल जाएंगे। मेरे नाम के ज्यादा लोग होते नहीं है। ठीक है। चलो, बहुत लोगों के पास तो नंबर है भी। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर एंड सी यू टुमारो 9:45। टिल देन, बाय बाय।